ہری پور ہزارہ میں ایک شادی کی تقریب اچانک روک دی گئی. کیوں؟ ہری پور کے علاقے غازی تربیلا کے ایک گھر میں ڈھولک پر شادی بیاہ کے گیت گائے جا رہے تھے. گھر میں چاروں طرف رونق تھی، چھوٹے بڑے قمقمے جگمگا رہے تھے اور پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ افسر غلام قادر کا بیٹا فہد دوستوں رشتہ داروں میں گھرا ہوا تھا. دراصل فہد کی چند دن پہلے ایک امریکی نژاد لڑکی سمرین سے شادی ہونے والی تھی. فہد پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور کچھ ماہ قبل اس کے والدین نے اس کی سمرین سے منگنی کر دی تھی. دوستوں رشتہ داروں کو دعوت نامے بھیجے جا رہے تھے. فہد کے والد نے خوبصورت شادی کارڈ چھپوائے تھے کیونکہ ان کے ہونہار بیٹے کی شادی ہو رہی تھی. ابھی رت جگہ کا جشن جاری ہی تھا کہ اچانک ڈھولک کی تھاپ رہی. شادی بیاہ کے گیت خاموش ہو گئے اور برقی قمقموں کو بجھا دیا گیا. پورے گھر میں سناٹا چھا گیا. لوگ ایک دوسرے کا حیرت سے منہ تکنے لگے. تقریب میں شریک ہر شخص کا چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شادی والے گھر میں اچانک اتنی اداسی کیسے ہو گئی. مگر جلد ہی سب کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ عین اس دن جب فہد کے گھر میں رت جگہ کا جشن ہو رہا تھا، سمرین کی شادی علاقے کے ایک اور نوجوان عتیق سے کر دی گئی تھی. سمرین کی کسی اور جگہ شادی کی خبر فہد کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری. سمرین کی کسی دوسری جگہ شادی کی خبر نے فہد کے گھر والوں کو حیران کر دیا تھا. فہد کی والدہ صدمے سے نڈھال ہو گئی. والد کسی گہری خاموشی میں چلے گئے اور بہن بھائیوں کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی. حیرت کی بات یہ تھی کہ سمرین فہد کو پسند کرتی تھی اور دونوں کی مرضی سے کچھ ماہ قبل ان کی منگنی بھی کر دی گئی تھی. پھر یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو گیا، یہ بات فہد کی سمجھ سے بالاتر تھی. اور یہ عتیق کون تھا جس کے ساتھ سمرین کو بیاہ دیا گیا تھا؟ کیا سمرین نے فہد سے شادی کرنے کے بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر لیا تھا؟ سمرین کی فہد کے بجائے اچانک عتیق سے شادی کا معاملہ خاصا گمبھیر تھا. فہد کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ سمرین کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور اسے کسی دوسرے شخص سے شادی پر مجبور کیا گیا ہے. فہد بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی. مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب سمرین اس کی نہیں رہی تھی، وہ کسی دوسرے کی بیوی بن چکی تھی. سمرین اور عتیق کی شادی کو 2-4 دن گزر چکے تھے اور فہد سمیت اس کا پورا گھرانہ غم و غصے اور صدمے کی کیفیت میں تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. فہد کی بہن نے دروازہ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. سامنے سمرین کھڑی تھی. اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں خالی خالی تھی. فہد کی بہن اسے گھر کے اندر لے آئی. فہد کی والدہ، والد اور بھائی بھی موجود تھے. انہوں نے پیار اور شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے سمرین کی خیریت دریافت کی اور آنے کا سبب پوچھا. سمرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بقول فہد کے گھر والوں کے اس نے اپنے شوہر کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی. وہ فہد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. سمرین کا یہ بیان سن کر فہد کے والد اور والدہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور اسے واپس جانے کو کہا کیونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی. سمرین واپس جانے کے لیے تیار نہ تھی. اسے بڑی مشکل سے واپس جانے پر راضی کیا گیا اور اس طرح ایک بہت بڑا طوفان تھم گیا. لیکن یہ سب کچھ عارضی تھا. سمرین کی واپسی پر کیا اس کے شوہر نے اسے قبول کر لیا اور کیا وہ فہد کو بھول کر نئی زندگی کا آغاز کر سکی؟ یہ جان سکیں گے. آپ اس بریک کے بعد کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹیلی نور نے. آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ملک کے تمام شہروں میں نماز عید کے اجتماعات سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. میرا دل کرتا ہے کہ میں عید اپنی امی کے ساتھ ہی کروں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امی کے پاس رہوں اور وہیں کھیلوں، وہیں ہی پڑھوں. میری امی 1 مہینے کے بعد ملنے آتی ہے. مجھے میری امی کی بہت یاد آتی ہے اور میرا دل کرتا ہے میں گھر چل جاؤں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موجود بچوں کی عید مگر والدین کے پیار کے بغیر ادھوری. فلوریڈا کی چرچ کا کہنا ہے کہ پادری ٹیری جانز کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے منصوبے کو ترک کر دیا گیا ہے. 9 سال پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. آج نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو پر خصوصی تقاریب کا اہتمام ہوگا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 62ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے.
सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। तीनों को एयरपोर्ट के पिछले गेट से रवाना कर दिया गया। इंग्लैंड ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 24 रन से शिकस्त दी। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल फाइनल में ब्रायन ब्रदर्स ने सामुल हक और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। आजाद कश्मीर के इलाके कोटली में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 26 अफराद जान बहक हो गए। टॉक शॉक से रोजाना करें जर्मनी, इटली, ग्रीस और दीगर यूरोपीय ममालिक में लंबी बात, वो भी बार बार, क्योंकि टॉक शॉक से रोजाना मिले 10 रुपए में 10 इंटरनेशनल मिनट्स। रोजाना सब्सक्रिप्शन के लिए *345*275# डायल करें तो फिर कॉल मिलाओ। टॉक शॉक से फायदा उठाओ। बांकी मियाँ को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है लू प्रिंस बिस्किट्स ने। तो अब मजे उड़ाओ, प्रिंस चॉकलेट और चोको ऑरेंज खाओ। प्रिंस बाय लू। खुशी का दिन तो है, लेकिन हम मनाए कैसे यारो? मजा नहीं आ रहा। लहू रोती हुई आंखें हम छुपाए कैसे यारो? सही बात है। यूं तो ईद शव्वाल एक खास तोहफा है भाइयों, मगर सैलाब ज़दगान को हम कैसे भुलाएं भाइयों? बुरी बात है ये तो। उधर रोटी के लुकमे को तरसते फिरते हैं बाबू, इस ईद पर सेवैयां हम कैसे खा सकते हैं बाबू? बर्फानी बेहिस है जो ऐसे में ईद मनाएंगे प्यारे, ईद उनकी है जो रोते हुओं को गले लगाएंगे प्यारे। पाके मियां की कवाली सबसे निराली, कोई सुने या ना सुने हम तो गाएंगे कवाली। पाकिस्तान भर में औरतों का एतमाद एरियल पर क्यों है? मेरा नाम सफिया खालिद है। मेरे हस्बैंड जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनके लिए साफ कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काफी लोगों से मिलते हैं। जब वो चाय पीते थे तो उनके फ्रंट पे अक्सर कतरा चाय का गिर जाता था और वो निशान पड़ जाते थे। पहले जो पाउडर में यूज करती थी 2 मरतबा मुझे मशीन लगानी पड़ती थी। मेरी दोस्त ने मुझे एरियल के बारे में बताया। एरियल प्रोजिम का रेड रिंग्स फॉर्मूला सख्त दाग आम पाउडर की 2 की बजाय 1 धुलाई में बेहतर निकाले। एरियल से मैंने कपड़े धोए और हैरान रह गई, 1 धुलाई में ही सारे दाग साफ हो गए। एरियल से धुले कपड़े पहनकर जाते हैं, कहते हैं ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। एरियल बहुत फिट है। पाकिस्तान भर की औरतों का एतमाद एरियल। RM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं राव मेगा सिटी में सुपर हाईवे पर DHA सिटी से मुत्तसिल एक शानदार रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा। तफसीलात के लिए देखिए रोजनामा एक्सप्रेस कराची एडिशन। पेश है सेफगार्ड का नया इकोनॉमी पैक 10 रुपए की बचत के साथ, जो करे लाखों जरासीमों का खात्मा बाकायदा हाथ धोने से। सेफगार्ड का नया इकोनॉमी पैक 10 रुपए की बचत के साथ। MAB बिल्डर्स पेश करते हैं कराची में अयूब हेवन 4, 5 और 6 कमरों के रॉयल अपार्टमेंट और शोरूम्स। तामीराती सनत में एक मुनफरिद तख्लीक। तफसीलात के लिए देखिए रोजनामा एक्सप्रेस कराची एडिशन। सिल्वर सिटी होम्स मुल्तान कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर और तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता एक शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट। तफसीलात के लिए देखिए रोजनामा एक्सप्रेस मुल्तान एडिशन। ये है ऑल इंडिया रेडियो। प्यारी आपा, ईद मुबारक। इस ईद पर भी दिल्ली में आपकी और आपके हाथ के खानों की बहुत याद आएगी। अस्तरफ, मुन्नी। अम्मी, ये ईद हम दिल्ली में मनाएंगे। दादो, आप कल ईद पे जा रही हैं? आपके हाथ के खानों की बहुत याद आएगी। इंडिया जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। आज ये कौन सा मेहमान आया, आज ये कौन सा मेहमान आया, यूं ही वो चश्मे हैरान आया। खाला जान, अम्मी, मेहमान आया, ईद मुबारक। नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारे त्योहार। मैं बस अभी आया। जल्दी आना। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा।
दाग नहीं बचेगा। हाँ? कोई भी दाग हो अब ब्राइट से नहीं बचेगा। क्योंकि अब हर समझदार औरत जानती है कि नए ब्राइट मैक्सिमम पावर में है स्टेन मैग्नेट की मकनतीसी ताकत जो हर जिद्दी दाग को खींच निकाले। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। दी कंस्ट्रक्टर्स पेश करते हैं स्टाइलिश व्यू अपार्टमेंट्स एंड शॉपिंग सेंटर सेक्टर 1A4 नॉर्थ कराची में 2, 3 और 4 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट का शानदार रहायशी मंसूबा। तफसीलात के लिए देखिए रोजनामा एक्सप्रेस कराची एडिशन। इस रमजान और ईद पर अपने यूफोन से करें 24 घंटे यूके, यूएसए और कनाडा में लंबी बात। पाकिस्तान के सबसे सस्ते इंटरनेशनल कॉल रेट पर, यानी सिर्फ 45 पैसे, वो भी बगैर किसी डेली चार्जेस के। ऑफर हासिल करने के लिए अभी *27# डायल करें। ये ऑफर पोस्ट पे कस्टमर्स के लिए भी है। हुआ ये कि फहद के वालिदैन के समझाने बुझाने पर समरीन वहाँ से चली तो गई, लेकिन अपने शौहर के घर नहीं पहुँच सकी। जिसके बाद समरीन का शौहर अतीक शदीद इश्तियाल में आ गया। उसके ख्याल में फहद और उसके घर वालों ने समरीन को अगवा कर लिया था। अतीक ने फहद के घर वालों को संगीन नतायज की धमकियां दी, जिस पर फहद के भाइयों ने थाना गाजी पुलिस से रुजू करके मदद मांगी, मगर थाने वालों ने नामालूम वजूह की बिना पर उनकी दरखास्त पर गौर नहीं किया और इस तरह फहद का पूरा घराना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गया। इस सारे वाक़े की अहम बात यह थी कि समरीन अपने घर नहीं पहुंच सकी थी और फहद भी कहीं गायब था, जिस पर समरीन के शौहर अतीक को शुबा था कि उसे फहद ने अगवा कर लिया है। फिर एक दिन अतीक अपने कई ताकतवर और बाअसर आदमियों को लेकर फहद के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा फहद के वालिद ने खोला तो अतीक बंदूक लिए खड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। फहद के वालिद ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि समरीन उनके घर में नहीं है, मगर वो सख्त इश्तियाल के आलम में था। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फहद के वालिद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि फहद की बहन भी शदीद जख्मी हो गई। फहद के वालिद को हलाक करने के बाद अतीक अपने साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गए। फैसल जमान साहब का MPA गली के कोने में खड़े हुए थे जी, और तकरीबन दोपहर को जिस वक्त ये अतीकुल्ला हमारे घर फायरिंग करके गया कलेक्शन कोफ से, और मेरी भाभी को इसने ज़बरदस्ती अगवा करने की कोशिश की। अतीकुल्ला, समीउल्ला, शराजुल्ला और शफीउल्ला। जिस रात ये अनदोहनाक वाक़या पेश आया, उससे एक रोज कबल मकतूल गुलाम कादिर के बेटों ने थाना गाजी पुलिस से जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था, जो बकौल फहद के भाई उन्हें फराहम नहीं किया गया। FIR कटवाने पुलिस के पास गया। FIR कटवा के मैंने एडिशनल SHO से कहा कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए पुलिस का, हमें ख़तरा है उनसे अपनी जान का ना। तो आगे से फ़खर मेरे साथ मजाक करता है, हंसता है और कहता है मतलब कि मैं अपने 4 सिपाही लगवाऊंगा ना आपके पास, ना आप नाश्ता भी उन्हें देना और खाना भी देना। तो मतलब उसने मजाक किया, उसने मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। इस वाक़े के बाद दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए। फहद पर समरीन के अगवा और अतीक पर फहद के वालिद को कत्ल करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पे मतलब कि इन्होंने वो एक बस वो क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने करना था, ऐसा हमारे साथ फायरिंग करनी थी, इन्होंने उसको क्रॉस करने के लिए सिर्फ पर्चा करवाया। फहद के वालिद के कत्ल के वाक़े के बाद से समरीन और फहद दोनों लापता हैं। अलबत्ता फहद के घर वालों का कहना है कि समरीन ने बयान हल्फी दिया था कि वो फहद के साथ है, लेकिन ये दोनों कहाँ हैं इसके बारे में किसी को इल्म नहीं। पुलिस का कहना है कि समरीन बाद में अपने बयान से मुनहरिफ हो गई। अतीक की बीवी थी समरीन आरफ, उसको अगवा किया फहद वल्दे गुलाम कादर वगैरह ने। फिर उसकी पताबरारी के लिए वो अतीक उनके घर आया, दाखिल हुआ, उनकी मस्तूरात को उसने खींचा था, वो पर्चा हुआ था। उसके बाद फिर ये लड़की वापस आ गई। वापस आई, इसने अदालत में अपना बयान कलमबंद कराया कि मुझे इन फहद वगैरह ने जबरदस्ती अगवा किया है। मोहब्बत और रकाबत की ये कहानी अभी तक पुरस्रार है, क्योंकि अगर समरीन फहद से मोहब्बत करती तो उसने अतीक के साथ शादी की हामी क्यों भरी थी, और जब अतीक से शादी हो चुकी तो वो उसे छोड़कर फहद के घर क्यों आता। फहद के वालिद के अनदोहनाक कत्ल के बाद उसके घर वाले बुरी तरह खौफ का शिकार है, जबकि मुल्जिम अतीक का पूरा घराना कहीं और चला गया है। फहद के घर वालों ने यह भी दावा किया है कि उनको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है, क्योंकि इस मामले में एक इंतहाई बाअसर सियासी शख्सियत मुलविस है, जिसका नाम पुलिस FIR में शामिल करने के लिए तैयार नहीं।